Good morning, students. Welcome back to your political science class. Let's continue our chapter number 7 that we started in the very last video, that is security in the contemporary world. In the last video, we have discussed a lot about what is security, about notions of security, and in detail we have studied about the traditional notion of security. Traditional notion is divided into two parts, external and internal. And now the topics to be covered in this video are non-traditional notions of security and also some new sources of threats. Security का मतलब बच्चे वही सेम ही रहेगा हमारा. Security means freedom from threats. Non-traditional notions में क्या आता है basically? Non-traditional notions focuses on human security and global security. Human security means protection of people rather than the protection of states. Human security and state security are often used interchangeably. But secure state does not mean that people are also secure. ज़रूरी नहीं है जो state secure है वहाँ पर लोग भी secure रहेंगे. Defense of citizens against any external aggression is an essential condition basically by their own governments rather than the alien attacks. Human security in a narrow sense protect individuals from the internal violence only, whereas broadly it protects from hunger, disease and natural calamities or natural disasters. The broader school of human security includes, like I told you, threats like hunger, disease, natural calamities, kill or any other thing that kills people more than war, genocide, terrorism combined. Human security, according to the school, should include these threats in addition to violence. जहाँ पर कोई भी जगह जहाँ पर लोगों पे लोग सिक्योर नहीं हैं तो सिक्योर स्टेट कंसिडर नहीं की जा सकती. And the place where humans are secure, चाहे वो किसी भी तरह से हो, that is considered to be human secure place. Next comes global security. The perspective on globally security emerged in 1990s because of the global threats like global warming, international terrorism, and some health epidemics like AIDS, bird flu, and so on. No single country can solve the problems alone. अब एक और चीज़ है सामने आपके, ग्लोबल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मैटर अब आपके सामने है, दैट इज COVID-19. See, no single country can solve the problem alone. There may be a situation when country may have to suffer from environmental degradation too. For instance, global warming has risen sea level by 1.5 to 2 meters. It would flood 20% of Bangladesh, inundate most of Maldives and threaten over the half of Thailand's population. This problem is global in nature. Likewise, terrorism is also just like that. इंडिया, चाइना, USA, ब्रिटेन, रशिया, सब जगहों पे ये प्रॉब्लम आ रही है. इसको डिटेल में हम ज़रूर करेंगे अभी, क्योंकि टेररिज्म जब इतना ज़्यादा बढ़ गया तो टेररिज्म को ग्लोबल सिक्योर इश्यूज से निकाल के टेररिज्म को न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स में डाल दिया गया. तो कुछ नए सोर्सेज भी आएंगे सामने हमारे, जो कि ऐसे सोर्सेज जो देखो अभी टेररिज्म ह्यूमन सिक्योरिटी में बात की, बिकॉज एक जहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है वहाँ पे ह्यूमंस का नुकसान होता है. ग्लोबल सिक्योरिटी में बात की, इसलिए हम इसको एक नई कैटेगरी में डालेंगे, दैट इज़ न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स. न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स आर लाइक जो कि बिल्कुल न्यू हैं, जिनसे हम प्रॉपर्ली अभी डील नहीं कर पा रहे. फर्स्ट वन, टेररिज्म. टेररिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल वायलेंस टारगेटिंग सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली. ग्लोबल टेररिज्म के अंदर लोग या फिर टेरिटरी आती है मोर देन वन स्टेट. टेररिस्ट ग्रुप सीक टू चेंज द पॉलिटिकल कंडीशन. अपने डर से, थ्रेट से अपने चेंज करना चाहते हैं पॉलिटिकल कंडीशन को. बेसिकली कहाँ पे अटैक करते हैं, हमने भी देखा है जहाँ पर टेररिस्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, जहाँ कहाँ पर होते हैं, जहाँ पॉपुलेशन एकदम ज़्यादा हो, जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो रखे हो, ताकि सिविलियंस, आम लोगों पर, पॉलिटिशियंस पे इस चीज़ का डर नहीं होता, आम लोगों पर डर बनाने की ज़रूरत होती है, वो होता है टेररिज्म. द क्लासिक टाइप्स ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व हाईजैकिंग ऑफ प्लेन्स कर लिए, या फिर ट्रेन्स में बॉम्ब्स लगा दिए, मार्केट्स में या क्राउडेड एरियाज़ में. हमारे इंडिया के अंदर बहुत से एग्जाम्पल्स, 26/11 का एग्जाम्पल यहाँ पर है, और मुंबई का 26 नवंबर 2008 का जो हमारे पास एग्जाम्पल है होटल ताज का,
या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है तुम्हारी 11 सितंबर 2001 अमेरिका के अंदर जब अटैक हुआ, तो ये चीज़ें ऐसे सामने आती हैं. एंड टेररिज्म इज़ नॉट समथिंग न्यू. In the past also, areas of Middle East, Latin America, South Asia and Europe have been affected by terrorism. It is only that now curbing of terrorism has become more of a global security concern, कि अब इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है. ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू हुआ है, ये इसलिए न्यू है. ये न्यू इसलिए क्योंकि इस पर फोकस ज़्यादा नए तरीके से फोकस देना है इसको रोकने के लिए, इसलिए न्यू थ्रेट है, एक नया सोर्स ऑफ थ्रेट है. नेक्स्ट हमारा न्यू सोर्स है ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स इज़ एन इशू ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, और ये 3 टाइप का होता है बेसिकली. पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ. सोशल एंड इकोनॉमिक लाइक राइट टू अर्न, राइट टू वर्क, राइट टू सोशल सिक्योरिटी. और होता है थर्ड वन होता है राइट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल और ऑफ एथनिक एंड इंडिजिनियस माइनॉरिटीज़. जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट देना. And there is a broad concern on these rights, but there is no unanimity on which the set of rights should be treated. कोई एक यूनिवर्सल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पर हमें ये नहीं बताया गया कि ये राइट्स वायलेट कब होते हैं और इनको ट्रीट कैसे करना है. इजराइली एक्शन इन पैलेस्टाइन या इराक की जो इन्वेजन, कुवैत, वो हमने पढ़ा हुआ है उसको, तो वो जो सिस्टम है ये सब ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं. आइडलिस्ट का मानना है कि यूएन चार्टर ने बहुत कोशिश की है ह्यूमन राइट्स को चेंज करने की या उनको सही करने की, लेकिन रियलिस्ट का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं. ये कोई एक बिग स्टेट या यूएन जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को डील नहीं कर सकती. थर्ड आता है ग्लोबल पॉवर्टी. द बिगेस्ट कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी एट द ग्लोबल लेवल इज ग्लोबल पॉवर्टी. वर्ल्ड पॉपुलेशन विच हैज़ of now is 650 crores is likely to reach to 700-800 करोड़ पहुंच जाएगी हमारे आने वाले 25 सालों के अंदर, और 1000 करोड़ शायद आगे पहुंच सकती है, ये इसका कुछ पता नहीं है. Nearly half of the world's population live in the 6 states like India, China, Nigeria, Bangladesh, Pakistan and Indonesia. The world population is expected to triple in the next 50 years, with UN having the world's poorest nations, while it is likely to shrink the world's richest nations. High growth rate, high per capita income, high literacy level and low population makes rich states richer, while low per capita income, slow growth rate, low literacy level and high population is likely to make states more poor. And this gap is likely to increase in near future. और पॉवर्टी तो अपने आप में एक बिगेस्ट कंसर्न कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज जब वही बात है, जब आम जनता ही खुश नहीं होगी, आम जनता के पास पैसा नहीं होगा, तो कैसे लिटरेसी होगी. पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं होगी तो लिटरेसी लेवल ख़त्म होगा. लिटरेसी लेवल ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली और प्रॉब्लम्स जैसे कि ये पॉपुलेशन मैनेजमेंट जैसी प्रॉब्लम सामने आएंगी. फोर्थ जो हमारा थ्रेट है वो है माइग्रेशन. Poverty in the developing or southern world has forced large-scale migration of people to rich or northern countries for better life and prosperity. It has even led to global political frictions. International law differentiates between migrants and refugees. Migrants leave their home country voluntarily, and refugees are people who flee to their countries due to war. लास्ट ईयर जब हमने इंडिया और पाकिस्तान का चैप्टर पढ़ा था, जब हमने चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी पढ़ा था, उस टाइम पर हम लोग पार्टीशन पढ़ रहे थे, तो हमने एक वर्ड यूज़ किया था रेफ्यूजी, और अब हम यूज़ कर रहे हैं माइग्रेंट्स. माइग्रेंट्स अपनी मर्जी से अपने काम के लिए जा रहे हैं या किसी और भी रीज़न के लिए जा रहे हैं अपनी कंट्री को छोड़ के, लेकिन जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको ज़बरदस्ती वॉर की वजह से या कोई पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की वजह से या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ता है. कंट्रीज़ रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट कोई लॉ ऐसा नहीं है जो माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए कहे. While refugees leave their mother country, migrants who leave their home but remain within the boundaries of their country are known as internally displaced peoples. जैसे कि कश्मीरी पंडित 1990s में उन्होंने जब वायलेंस हुई थी वहाँ पर, तो उन्होंने छोड़ के वो नॉर्दर्न साइड आ गए थे. और रेफ्यूजी मैप की तरफ देखें तो हमारे सामने पाकिस्तान का और इंडिया का पार्टीशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. और जो माइग्रेंट्स की कंडीशन की बात की जा रही है, तो उसका सबसे बेसिक चीज़ क्या है, माइग्रेंट हमारे यहाँ से इंडिया से बाहर कोई बच्चा जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे उसको सिटीजनशिप आसानी से नहीं मिलती. अब जैसे सिचुएशंस हैं, अब अमेरिका तो नहीं, खैर ऑस्ट्रेलिया और जैसे कि लाइक सिडनी मेलबॉर्न में क्या चल रहा है,
वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड की जा रही हैं लॉकडाउन के अंदर अंदर, लेकिन की किसको जा रही है? सिर्फ और सिर्फ वहाँ के अपने सिटीजन्स को। जो माइग्रेंट्स हैं उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। और कोई भी लॉ, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो इनको फोर्स कर सके इस चीज़ को रोकने के लिए कि आप ऐसे मत ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं बना। और जो लास्ट न्यू थ्रेट हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ हेल्थ एपिडेमिक्स, यानी कि हेल्थ एपिडेमिक्स HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको SARS बोलते हैं, या फिर अब तुम्हारा यहाँ पर जो COVID-19 चल रहा है, ये हेल्थ एपिडेमिक है। आर रैपिडली स्प्रेडिंग अक्रॉस कंट्रीज ड्यू टू माइग्रेशन, टूरिज्म, बिजनेस एंड मिलिट्री ऑपरेशन। माइग्रेशन का इम्पैक्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं, इवन दो वी पीपल आर इन यमुनानगर, और हमारे यमुनानगर में केसेस किस तरह से बढ़े हैं हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स जहाँ पर COVID-19 का एक बोलबाला बहुत ज़्यादा केसेस हैं, जहाँ पर वहाँ से ऐसे आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर भी बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये माइग्रेशन का ही इम्पैक्ट है। या फिर हम बात करें तो जहाँ से COVID-19 का ओरिजिन हुआ, यानी कि चाइनीज़ मार्केट, वुहान से जहाँ से ओरिजिन हुआ इस वायरस का, वहाँ से भी तो दूसरी कंट्रीज़ में फैलने के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? माइग्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय 2003 ओवर 4 करोड़ पीपल वर अफेक्टेड बाय HIV एड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, और 2/3 इसमें से अफ्रीका से बिलोंग करते थे। कुछ और पुराने डिजीजेस जैसे कि मलेरिया, TB, डेंगू फीवर, कॉलेरा, आप लोगों को तो बच्चे नहीं पता इनके बारे में, कभी अपने पेरेंट्स से बात करके देखना है इस सब के बारे में कि मलेरिया या TB ने या डेंगू ने अपने टाइम पर, जब तक इनकी वैक्सीन्स बनने में टाइम लगा है या इनको के ऊपर काबू पाने में टाइम लगा है, तो उस टाइम तक कितनी डिस्ट्रक्शन इन्होंने की है। तो ये सब जो नए 5 थ्रेट्स मैंने आपको बताई, ह्यूमन और ग्लोबल सिक्योरिटी यानी कि नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में ही आते हैं। इन पांचों से डील करना, ये पांचों एक कंबाइंड फॉर्म में ह्यूमन और ग्लोबल इशू है, ह्यूमन और हेल्थ इशू है बेसिकली। पांचों टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन और हेल्थ एपिडेमिक्स। कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू। अगर आपको इससे पिछली वीडियो नहीं मिली तो प्लीज़ आप चैनल पे जाएं, उसको चेक कर लें, जहाँ पर चैप्टर 7 हमने शुरू किया है, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करें पहले, देन इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।